ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے، ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا۔ پہلے تو ایک سوچ آئی، گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا۔ ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ بات کریں گے آج ہم کچھ ان حالات کی جس کی وجہ سے ہم روز بروز مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور اس مایوسی کے نتیجے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں، پاکستان چھوڑ جاتے ہیں، اور پاکستان چھوڑ کے ہم باہر کے ملکوں میں جا کے روزگار تلاش کرتے ہیں، یا وہاں پر جا کے اپنا کوئی کاروبار بنا لیتے ہیں، اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اور وہاں جا کے کاروبار کرتے ہیں، اور یہ ملک جو ہے یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر میں آپ کو اسی آپ کی جو سوچ ہے اس پہ کچھ بات کروں گا۔ میں ہوں آپ کا دوست فرحان بھائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھونسلہ، آپ کے فیوریٹ چینل بزنس انسائٹس پہ۔ آج کے پروگرام کا جو نام گھونسلہ رکھا میں نے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا۔ میں اس کو گھونسلہ اس لیے کہہ رہا ہوں ان والدین کا سوچ کے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑے ہوئے، آنکھوں کے سامنے انہوں نے کھیلنا شروع کیا، ماں باپ نے ان کو چلنا سکھایا، اور اس کے بعد وہ بچے ان کو پڑھایا لکھایا، یونیورسٹیز میں گئے، اور پھر ایک ایسا دن آیا کہ جب ان بچوں نے بہت سارے لوگوں سے متاثر ہو کے، باہر کی دنیا سے متاثر ہو کے اپنے ماں باپ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، میں یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا۔ اس ماں کو اپنے ذہن میں لے کر آئی، اور اس باپ کو اپنے ذہن میں لے کر آئی، کیونکہ جو خاص طور پہ مغرب کا معاشرہ ہے، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ایک بچے نے مغرب کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ مغرب کی طرف چلا گیا، تو پھر اس کے ماں باپ یہاں پہ بالکل تنہا ہو جاتے۔ باقی سب باتیں ہیں کہ جی جب سیٹل ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ وہاں کا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو واپس آنے دے۔ یہ نہیں کہ اس نے زبردستی آپ کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اس لائف سٹائل کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں، بلکہ اپنے اس ملک کے اندر آپ کے بہت سے وہ پیارے رشتے جن کے بغیر ہم کبھی رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، ہم ان رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ یہ ضرور سوچیں اپنے بچوں کو، خاص طور پہ مغرب بھیجنے سے پہلے، کہ جس دن آپ نے ان کو مغرب بھیج دیا، وہ دن بالکل ایسے ہی ہوگا کہ گھونسلے سے پرندے اڑ گئے۔ وہ پرندے، وہ جو آپ کے گھر میں آپ کی چڑیا تھی، آپ کے پرندے تھے، وہ اڑ گئے۔ ضرور سوچئے، اور وہ بچے بھی ضرور سوچئے کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ یار میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر برے حالات نہیں آئے؟ کون سا ایسا ملک؟ کیا امریکہ میں کبھی برے حالات نہیں آئے؟ Poverty, homelessness, and crime are interconnected issues that have plagued the United States for decades. In 2021, 11.6% of Americans lived in poverty, meaning that over 37 million people were struggling to make ends meet. کیا کینیڈا میں کبھی برے حالات نہیں آئے؟ Thousands of people lined up for hours at this Toronto job fair, many hopeful they'll find work after being turned down by other employers. کیا آسٹریلیا میں کبھی برے حالات نہیں آئے؟ Australia's housing crisis going up in flames. Is this the most tense you've seen in a little while? Yeah, absolutely. Families facing homelessness.
कहीं कभी यूएस में बुरे हालात, यूके में बुरे हालात नहीं आए? हर जगह बुरे हालात आए हैं, मुश्किल हालात हर जगह पर आए हैं, आते रहे, हर जगह आए। लेकिन क्या जब बुरे हालात आए तो वहां के जो लोकल्स थे या वहां के जो नेटिव्स थे, उन्होंने अपना मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया? अपना मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना मुल्क जो था वो नहीं छोड़ा। मुझे याद है बिल्कुल लेटली, बहुत करीब में 2008 से 2010 की बात थी, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में। उस क्राइसिस का नाम था लेमैन बैंक क्राइसिस। आपको मालूम है कि उस क्राइसिस के अंदर पूरी दुनिया उस क्राइसिस का शिकार हुई थी। अगर कोई मुल्क उस क्राइसिस का शिकार नहीं हुआ था तो वो पाकिस्तान था। लेमैन बैंक क्राइसिस, पूरी दुनिया शिकार हो गई थी उस क्राइसिस। उस क्राइसिस के अंदर जो अमेरिकन थे वो भी मुतासिर हुए, जो ब्रिटिश थे वो भी मुतासिर हुए, लेकिन बहुत कम अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका छोड़ दिया कि अब चूंकि क्राइसिस आ गया है तो हम दुनिया के और मुल्कों में चले जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। देखो, मुल्कों की तारीख के अंदर अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं यार। मुल्कों की तारीख ऐसा नहीं है कि हम कहें कि 40 साल की तारीख, 50 साल की तारीख, पर ये कोई इतना लंबा अरसा नहीं होता। तारीख जो होती है ना वो 100 200 साल, 300 साल की तारीख होती है। कभी पढ़ें आप अमेरिका की तारीख कितनी बड़ी है, यूके की तारीख कितनी बड़ी है, कितने फसाद हुए, कितने इनकलाब आए, क्या कुछ हुआ। लेकिन चूंकि वहां के लोग वहां उस मुल्क के साथ अटैच रहे, वहां रहे, तो उन्होंने अपने मुल्क बना लिए। एक बड़ी अजीब सी सोच है कि जी जब हम मुल्क से बाहर जाएंगे तो आखिरकार मुल्क के लिए हम कोई पैसे तो भेजेंगे ना, हम मुल्क के लिए फायदा होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज की कॉस्ट और दूसरी चीज की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो आपको नजर ये आएगा मेरे दोस्तों, मेरे बड़ों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहनों, आपको नजर ये आएगा कि एक शख्स जिसको जो एक मुल्क में तैयार होता है, वो पढ़ता लिखता है, उसके ऊपर जितना एक किसी भी मुल्क का जो उसकी रिसोर्सेज लगी होती हैं, जो अखराजात हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं बनिस्बत उसके कि वो जो पैसे वहां से बाहर से यहां पर भेजेगा। और फिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर आप एक चीज क्यों नहीं सोच रहे? देखो, मगरिब के अंदर तो ये ट्रेडिशन है, मगरिब की ये ट्रेडिशन थी कि उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर ओल्ड होम्स बनाए हुए थे, ओल्ड हाउसेस बनाए होते थे। वो क्या करते हैं, आज भी है उनके यहाँ ओल्ड होम्स और ओल्ड हाउसेस, कि जब बच्चा जो है वो नौकरियां शौकरियां करना शुरू हो जाता है, जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, तो वो माँ बाप को क्या करता है कि एक बहुत खूबसूरत से ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ देता है कि आप लोगों ने अब मरना ही है ना, अब मरना है ना आप लोगों ने, तो यहां मर जाइएगा, उस ओल्ड हाउस में मर जाइए। ये वहां की साइकोलॉजी है, ये वहां की थिंकिंग है, ये वहां का माइंडसेट है। उन्होंने हमारी जो नस्ल थी, वो लोग जो सोच सकते थे, उनको अपने प्रोपेगेंडा के जरिए से उनके जहनों को इतना मुंतशिर किया कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हम बाहर की दुनिया में चले जाते। ठीक है, वो बाहर की दुनिया में चले गए, लेकिन उन्होंने जब वो बाहर की दुनिया में गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां की इकोनॉमी जो थी उसको तो बना दिया। बहुत सारे पाकिस्तानियों का बहुत कंट्रीब्यूशन है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, बहुत से पाकिस्तानी इंजीनियर्स का, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने उन इकोनॉमीज को बना दिया क्योंकि दिमाग थे। इस दिमाग की कोई कॉस्ट नहीं है। उन्होंने हमसे अपनी उन स्कीम्स के जरिए से, उन इमिग्रेशन स्कीम्स के जरिए से हमसे उन्होंने दिमाग तो हासिल कर लिए, और उन्होंने उस दिमाग के जरिए से अपने माशरे को तो बना लिया, लेकिन उसका असर क्या हुआ कि यहां से, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यहां से बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हुआ। यहां की फैमिलीज टूट गई। आप सोचिए, उन घरों को सोचिए। ठीक है, आपको नजर आता होगा कि उन घरों में डॉलर्स आ रहे हैं, उन घरों के अंदर जो है बड़ी वेल्थ आ रही है, लेकिन क्या वो डॉलर्स उस साथ का
मुतबादल हो सकते हैं, जो साथ जो है उनके बच्चे उनके इधर होने से दे सकते हैं। आज मैं पूछना चाहूंगा, आज आप देखिए हो गया उन घरों को, अभी कुछ दिनों के बाद आप एयरपोर्ट पर जब जाएंगे तो वो लोग जो ईद त्योहार करने के लिए आए हुए थे, और जब एयरपोर्ट पे उनके बड़े उनके घर वाले उनको छोड़ने जा रहे होंगे, तो कितने आंसू होते हैं आंखों में, कितने आंसू होते हैं। सोचिए उस बाप के बारे में। वो बेचारा चुप करके बैठ गया। उसके बच्चे ने कहा मैंने बाहर जाना है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। वो उस बाप ने अपने ऊपर जबर किया, उस माँ ने अपने ऊपर जबर किया। वो चुप करके बैठ गए, और वो चुप करके कि ठीक है बच्चा कह रहा है जाने देते हैं उसको। वो घर पे उस परिंदे को उड़ाते वक्त वो चुप करके बैठ गए बच्चे की ख्वाहिश के आगे। वो बाप यहां पर मौजूद रहा, वो बाप बीमार भी होता रहा, वो माँ बीमार भी होती रही। बच्चा हमेशा वहां से फोन करता था, अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल रखें अपना, बताइए मैं आपको कोई पैसे भेज दूं, बताइए अस्पताल के लिए कोई पैसे भेज दूं। उसको नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप को उसके पैसों की जरूरत ना थी। उसको नहीं मालूम था, उसके माँ बाप को उसके पैसों की जरूरत ना थी, उसके माँ बाप को उसके साथ की जरूरत थी। वो साथ कि वो बच्चा जब रोजाना ख्वाहिश थी कि वो बच्चा जब दफ्तर से रोजाना शाम को वापस आए, वो तो उसके माँ बाप ने, उसकी माँ ने उसके लिए रोटी बना के रखी हो, खाना बना के रखा हो, वो टेबल पर आए, बैठे, उनके साथ खाना खाए। ये साथ था, ये वो साथ था, ये वो साथ था जो उसके माँ बाप को जिसकी जरूरत थी। कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिनकी वफात हो गई, कितने ही माँ बाप ऐसे हैं कि जिनकी वफात हुई, और उनके बच्चे जब वो बीमार थे उनके साथ ना आ सके, उनके पास ना आ सके। वो अपने बच्चों के इंतजार में बिस्तरे मर्ग पर रहे, बच्चों के इंतजार में, शायद मेरा बेटा या मेरी बेटी आ जाए, शायद आ जाए मेरी बेटी, मेरा वो बेटा आ जाए जिसको मैंने अपनी गोद में, जिसको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, शायद वो आ जाए। एक बाप अपने बेटे को जब उसको बचपन में नींद ना आती थी, ये लोरी सुना के शायद सुलाता था। बाबा का बेटा हूँ, बाबा के पास रहूंगा, पारा सा बेटा हूँ, बाबा के साथ रहूंगा, चाहे दुनिया कहे सारी, बाबा को तुम छोड़ दो, दुनिया को मैं छोड़ूं सारी, बाबा को कभी ना छोड़ूं। बाबा मामा साथ हम सब रहें, बाबा का बेटा हूँ, बाबा के साथ रहूंगा। लेकिन वो अपने हालात में इतना मसरूफ था कि वो ना आ सका। उसके माँ बाप की यहां पर वो वफात पा गए। माँ बाप के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद या माँ के मरने के बाद उसका जहाज लैंड करता है, उसका जहाज लैंड करता है। वो सारे रिश्तेदार देखते हैं कि उसका बेटा आ गया। अपने बाप के जनाजे को या अपनी माँ के जनाजे को वो कंधा देता है, उन माँ बाप के जनाजे को वो कंधा देता है जो फौत हुए थे, कि शायद बिस्तरे मर्ग के ऊपर सोच रहे थे कि मेरा बेटा वक्त पर पहुंच जाए, मेरी बेटी वक्त पर पहुंच जाए, और उसी इंतजार में उनकी वफात हो जाती है। अब बात यहां पे ये आती है,
सब ये सोचते हैं कि क्या करें, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मान लें इस बात को, ये नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। आज दुनिया के अंदर जितनी कम्युनिकेशन, जितनी तरक्की कर चुकी है, पाकिस्तान में भी सब कुछ है, इस मुल्क में सब कुछ है। सिर्फ यहां पे सोचे कि हमने यहां रहना है। आज यहां पर वो लोग भी हैं जो कि यहां पर बैठे हैं और वो कमाई कर रहे हैं डॉलर्स में। उनके दफ्तर यहां पर हैं, वो उनके सॉफ्टवेयर हाउसेस यहां पर हैं, उनकी रिटेल आउटलेट्स जो है वो यहां पर हैं, वो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि जो भी है, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप वो इधर हैं, हमने जो कुछ करना है यहीं पे करना है, इसी मुल्क के अंदर रहते हुए करना है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। 1300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यहां से मशरिक की तरफ चले जाइए, हिंदुस्तान के अंदर चले जाइए, कितने हिंदुस्तान में लोग हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि हमने अपने मुल्क को छोड़ के जो है वो चले जाना है और बाहर की दुनिया को तो हमने बना देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वहां पे आज एक ट्रेंड नजर आएगा कि वो लोग जो कि बाहर चले गए थे वो वहां पर वापस आ रहे हैं, अपने मुल्क की तरक्की के अंदर वो शाना बशाना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गलत है ये सोच कि नहीं, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ हमने सोचना है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये सोचना है कि यार जब हम वहां पर जाते हैं तो हम छोटे काम भी करते हैं, बड़े काम भी करते हैं। वहां पे हम ये नहीं सोचते हैं कि ये काम छोटा है या बड़ा है, वहां पे हम सिर्फ काम को इस तरह सोचते हैं कि क्या ये काम जो है हलाल है या हराम है, अच्छा है या बुरा है। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। बहुत से लोग ऐसे हैं वहां पे जो गए, उन्होंने गाड़ियां जाके साफ की और गाड़ियां साफ करते करते इतनी तरक्की की कि उन्होंने अपने सर्विस स्टेशन बना लिए। लेकिन यहां पर जब बात आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, अगर हम ये काम यहां पे कर रहे होंगे तो लोग कहेंगे कि क्या काम कर रहा है यहां पे, ये काम तो इसके करने का ही नहीं है। तो हम उस वक्त लोगों की परवाह करना शुरू हो जाते हैं। जाइए जाके आज के दिन जाके देखिए, आप देखिए जाके उन लोगों को जो कि यहां पे काम कर रहे हैं। बहुत से आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी, बहुत सी जबरदस्त एग्जाम्पल्स मिलेंगी ऐसी कि जिन्होंने यहां पर रहे। मैं आपको उनके नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्राइवेसी की वजह से उन लोगों के नाम नहीं ले रहा। जौहर टाउन में जाइए, कितने ज्यादा, जौहर टाउन लाहौर का एक इलाका है, कराची के अंदर नर्सरी के इलाके में जाइए, जहां पे वहां पर आप देखेंगे कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो बच्चों ने यहां बनाए, ग्रेजुएट करने के बाद बनाए, और आज वो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं उनके तरक्की करें। कितनी ऐसी अकाउंटिंग फर्म्स हैं, वो लोग जो मैनेजमेंट साइंस जिन्होंने की, अकाउंट्स किया, बीकॉम किया, कितनी अकाउंटिंग फर्म्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए बाहर की दुनिया को अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और वो अकाउंटिंग सर्विसेज जो हैं उनके जरिए से वो डॉलर्स कमा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बेच के डॉलर्स कमा रहे हैं। कितनी ऐसी आपको जगहें नजर आएंगी। सोचे तो सही, देखे तो सही आप लोग एक दफा जाके। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप बाहर ही चले गए तो आपके लिए जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी। हमेशा हम पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते हैं कि इस मुल्क में कुछ नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं है। एक चीज आपके सामने मैं बता रहा हूं, आज आप सामने देख, इस चीज को रखिएगा। 25 करोड़ आबादी, एक कैलकुलेशन है कि 25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर कितने टैक्स पेयर्स हैं, कितने लोग टैक्स पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 40 लाख लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 40 लाख लोग जब टैक्स पे करेंगे तो फिर मुल्क का हालात तो बुरे होंगे, क्योंकि वो जो टैक्स पे कर सकते थे उन्होंने ये सोच लिया कि हमने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। कितने लोग हैं यार यहाँ पे, कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि करप्ट होंगे? कितने लोग हैं? क्या 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि करप्ट होंगे? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इतनी करप्शन है कि जनाब हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे है करप्शन, जरूर है, लेकिन अगर करप्शन है तो क्या इसका मतलब यह है कि हम करप्ट लोगों को तो यहां पर रहने दें, लेकिन जो कि हम खुद कर सकते हैं, हम खुद कुछ कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो हम ना करें? अच्छे दिन आएंगे, उस वक्त आएंगे कि जब हम यहां पर मौजूद होंगे।
ہم نے اچھے دن لینا ہے. اس ملک کو ہم نے بنانا ہے. ہم نے اس ملک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کے بنانا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے بنانا ہے, اور یہ بنے گا ان کی دعاؤں کے ساتھ. یہ بنے گا آپ کی محنت, ان کی دعائیں. ایک گھر یار کامیاب ہو گیا گورا کہ جس نے ہمیں ہمارے اندر نہ صرف یہ سوچ دے دی بلکہ اس نے اس سوچ کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. کامیاب ہو گیا وہ گورا. کیا کیا اس نے؟ اس گورے نے ایک ہمیں کلچر دے دیا کہ ہمارے تو فیملیز جو ہوتی تھی, جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی, وہ فیملیز ٹوٹ گئیں. کچھ لوگوں کو وہاں بلا لیا, اپنے پاس بلا لیا, اپنا ملک بنا لیا. ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا اٹھا کے, ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا اس گورے نے. اور ہم لوگ ٹوٹتے چلے گئے, بکھرتے چلے گئے, اڑتے چلے گئے. میں اتفاق نہیں کرتا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا یار, آپ ایسا کریں, آپ باہر جائیے, ضرور جائیے اور وہاں پہ اپنے ماں باپ کو بلائیے. یار خدا کا خوف کرو یار, پلیز فار ونس خدا کا خوف کرو. ان ماں باپ کو بلا لو کہ جن کے دوست, ان کے رشتہ دار سب یہاں پر ہیں, اور ان کو اکیلا وہاں پہ بلا لو. تو پوچھو تو صحیح جا کے وہاں پہ ان ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے. جا کے پوچھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح جا کے کہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ماں بیچاری, باپ بیچارہ گھر میں اکیلا بیٹھا, نہ اس کے دوست, نہ ان کی سہیلیاں, نہ ان کا کوئی اور لوگ. وہ بیچارہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, صرف اور صرف اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر. سوچو تو صحیح ہے. ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ کو ریوزٹ کرو کہ کیا سوچ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. گھوڑے کی سازش میں آ کر خود تو چھوڑ کر چلے گئے اور پیچھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ماں باپ کو کہ جنازے میں آ جائیں گے. جب باپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی بیمار ہوتے وقت تو پیسے بھیج دیں گے. یہی بس ہمارا فرض ہے. میری ان باتوں کو ضرور سوچیے گا. اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو زہرید چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا ہوا تو معاف کیجیے گا. اگر بہت پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ان باتوں سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا. رہنا ہے ہم نے پاکستان میں, اور ہم نے پاکستان کو بنانا ہے.